Hello everyone, very good evening to all of you. Navinder, Vishal, Parikshit, Amrish, Mohit, Mayank. Good evening. I'm audible to you all. मयंक को क्लास में पिछले 3 दिनों से दिक्कत हो रही है. मयंक, what kind of problem you are facing? Good evening everyone. How are you all doing? Is everything all right now? Are you getting me? So, we were discussing about some common phrases in different kind of situations, and I think wish to say good night had we discussed. Yes. Wish to say because. Wish to say I don't know. कहाँ से करना है हमें? सर क्लास लाइव नहीं हो रही है. मयंक, लाइव अभी भी नहीं हो रही है आपको? Vishal, if your basics are not clear, then you should go with the English special batch, because in banking special, stress is not very much on grammar portion. I think I taught for some 2 weeks or 2.5 weeks for grammar portion only, and that was more of a revision thing. If your basics of grammar are not clear, then you should go with the foundation batch. If your fundamentals are okay, there is no problem at all in that area, then you can pick banking VOD. आपने यहाँ लिखा है CDA FCAT के साथ साथ बैंकिंग का देना है, तो उसके लिए है, बिकॉज जो स्पेशल क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं बैंकिंग में टाइप पैराग्राफ बेस्ड, वो उसी में डिस्कस होते हैं. अब ओके है ना? लाइव है, सब कुछ ठीक ठाक है. चलो आगे बढ़ते हैं. शुड वी स्टार्ट विद योर क्वेरीज नाउ? इसमें आगे बढ़ने से पहले, बिकॉज यहाँ पे तो रीड आउट ही करना है हमें, अगर मैं आपसे रिफ्लेक्शन लो, लाइक what kind of change you have witnessed within yourself after taking these classes, what kind of change you are feeling within yourself, yes, or what are the areas you think that you should work on more? What's your assessment? Because this is more of a skill based batch, skill based classes. Okay Sapna, you are preparing for air hostess. Good. बिल्कुल कर सकते हैं गौतम. फाउंडेशन बैच किसी भी जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, या आपकी ग्रामर बेस, जैसे बोलना भी है तो बोलने के लिए भी तो स्ट्रक्चर आना चाहिए ना. बात वही है कि स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए, कहाँ क्या लगाना है, कैसे लगाना है. तो वो सब ग्रामर जो फाउंडेशन बैच है उसमें डिटेल्ड मैनर में डिस्कस होता है. क्योंकि जब मैंने आप लोगों से आपका रिफ्लेक्शन मंगाया था, तो हमने यहाँ देखा भी था कपल ऑफ मैसेजेस, and what kind of grammatical mistakes you people did, couple of you did. So that simply makes it evident that your fundamentals are not clear, and that is one of the biggest hurdles in speaking as well, because if somewhere in the back of your mind you are aware of the fact that I am not that good in terms of grammatical knowledge, तो वो बार बार आपको पिन पॉइंट करता रहेगा और आपको कभी भी हिम्मत नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बोलने के लिए. ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं ग्रामर 80 घंटे का जो फाउंडेशन बैच में पढ़ाता हूँ, वो पढ़ाने के लिए तो ये बैच है नहीं, ये स्पोकन का बैच है. यहाँ पे उनके स्पीकिंग से जुड़े हुए जो गुर हैं वो सिखाए जाएंगे, बट दैट इज योर कॉल. इफ यू फील yes, that's the problem area, you need to work on that, and you can easily do that. That's not a problem. I think I have to work on pronunciation and grammar too. Amit's reflection is, I'm feeling more confident than before in terms of listening and reading as well as writing. That's the feedback of Shivam. Major change in my way of thinking, Vishal is saying. Okay, because बोलने से पहले, लिखने से पहले प्रोसेस करना पड़ता है और उसके लिए सोचना आना चाहिए. नाउ आई फील वेरी कॉन्फिडेंट टू डील विद एनीवन, मयंक इज सेइंग. ओके, आई थिंक आई हैव टू वर्क ऑन इमिटेटिंग एंड स्पीकिंग. दैट्स द वेरी फर्स्ट क्लास जहां पे मैंने ये बात की थी आपसे. और अगर आपको याद हो, वो इमोशंस वाली क्लास, अभी मैं देख रहा था कि करियर विल के फेसबुक पेज पे उसका छोटा सा कट लगा हुआ है, मेरे ख्याल से पहली या दूसरी क्लास थी, जहां आपको याद आ रहा है ना, व्हाई आर यू अवॉइडिंग मी. अब इस व्हाई आर यू अवॉइडिंग मी को आप कैसे बोल रहे हो, इससे पता लग रहा है कि आप किधर फोकस करना चाहते हो, राइट? तो व्हाई आर यू अवॉइडिंग मी, ये कारण के ऊपर ज्यादा फोकस है आपका, वर्ब के ऊपर फोकस है, उस इंसान के ऊपर फोकस है. उस हिसाब से आपने ओकल स्ट्रेसेस जो है वो चेंज करनी है. ठीक है?
By listening All India Radio around the clock, my pronunciation have really been improving. Asha is saying, absolutely. वो बहुत काम का था. जितने लोगों को pronunciation improve करनी है, आप न्यूज सुने. मैं बार बार कहता हूं वही काम मैंने भी किया था. जब स्टैंडर्ड सुनोगे तो जबान से स्टैंडर्ड निकलेगा. अदरवाइज होता क्या है ना कि जब हम जैसे मूवी देख रहे हैं या वहां से अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, स्टिल देयर आर कपल ऑफ वर्ड्स जो आके आप गलत प्रोनाउंस करते हैं और वहीं से काम खराब हो जाता है. वो एक वर्ड अगर गलत प्रोनाउंस कर दिया आपने तो भी काम खराब हो जाएगा. उससे पता लग जाएगा कि नहीं आप एफर्ट डाल रहे हैं. तो व्हाइल यू आर स्पीकिंग you seem to be absolutely effortless, and for that you have to put in a lot of efforts in background. And All India Radio English news are discussions in English language that could be one of the best sources for improvement in your speaking, or the different aspects of speaking, because sometimes there is a group discussion as well. जैसे 9:15 पे आई थिंक न्यूज खत्म होती है इंग्लिश में रात के, और 9:15 से 9:30 तक कई बार वो प्रोग्राम देते हैं. देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिस्कशन इज गोइंग ऑन. तो व्हेन देयर इज अ डिस्कशन विद इन अ ग्रुप, आपने कैसे बात करनी, हाउ टू स्टार्ट योर पॉइंट, इफ यू वांट टू इंटरजेक्ट, हाउ टू इंटरजेक्ट, ये सब आपने जीडी में सीखा हुआ है. बट मैं अब देखो कई स्टेप में काम है. यहाँ जो चीजें सिखाई जा रही हैं आपको प्रैक्टिस में लानी पड़ेंगी ना, क्योंकि आपको उस पर महारत चाहिए. आई कैन जस्ट गाइड यू पीपल. हाउ यू आर प्रैक्टिसिंग दैट इज गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू योर स्किल्स. प्रैक्टिस, हैबिट, स्किल, परफॉर्मेंस. This is a flow chart. I don't know have I discussed this or not. My job is just limited with the direction. What to do, how to do, why to do. बाकी सारे स्टेप आपके साथ हैं. प्रैक्टिस आपको करनी है. कोई भी चीज बार बार प्रैक्टिस करते हो, दैट बिकम्स योर हैबिट. दैट बिकम्स योर हैबिट. हैबिट किस में कन्वर्ट होता है? स्किल्स में कन्वर्ट होता है. यस और नो? हैबिट स्किल्स में कन्वर्ट होता है. हो सकता है नमी फेल जो है वो गाड़ियों का काम करता है, मतलब इंजन ओवरहॉलिंग मैकेनिक है वो, और उसको अपना काम अच्छे से आता है. उसके दादा भी मैकेनिक थे, बाप भी मैकेनिक हैं, और वो भी मैकेनिक है. हो सकता है 9वीं के बाद उसने पढ़ाई ना करी हो, 9th स्टैंडर्ड के बाद, बट क्योंकि वो प्रैक्टिस वो बचपन से देख रहा है. वो छोटा था तभी वो दुकान पे रहता था, कार्बोरेटर जरा धूल के ले आओ, ये करके लाओ, वो करके लाओ. तो वो बचपन से देख रहा है कि किस पुर्जे का क्या काम है, क्या फंक्शन है. और इतनी प्रैक्टिस है, पुश्तैनी प्रैक्टिस है कि वो स्किल में कन्वर्ट हो गई है, और उसकी वजह से उसकी मार्केट में उसकी इज्जत है. अगर वो मतलब 2 मोटरसाइकिल 3 मोटरसाइकिल की ओवरहॉलिंग कर गया पूरा, तो शाम को अच्छे पैसे लेके जाएगा वो घर. और इधर मैकेनिकल इंजीनियर साहब हैं, उन्होंने जब 1 नाइट स्टडी करके डिग्री ले ली है अगर किसी Tier 3 Tier 4 कॉलेज से, तो उनको तो 10,000 की भी नौकरी नहीं मिल रही है ना मार्केट में. तो मार्केट किसकी इज्जत करता है? मार्केट आपके स्किल्स की इज्जत करता है. और ये स्किल्स रेपिटेशन से आती, इतनी बार रिपीट करो, इतनी बार. जैसे कल यहाँ पे एक मैडम कह रही थी ना कि बिकॉज सर मैं जब जाती हूँ लोगों के सामने तब दिक्कत हो जाती है. तो करो ना उस चीज की प्रैक्टिस. कौन मना कर रहा है उसको? उसके लिए आपको इतनी बार रिहर्सल कर लो. आप इमेजिन कर लो कि लोग बैठे हैं सामने, अपना कमरा बंद करो. इतना लोग वो सब करते हैं, रील वील बनाते हैं गाने वाने का. आप इसी का रील मत बनाओ, दूसरों के लिए नहीं, मैं आप अपने लिए कह रहा हूं. आप रिकॉर्ड करो अपनी परफॉर्मेंस को. आप ऐसे मान लो कि आप अपने कमरे में हो और लोग बैठे हुए हैं, और आप इमेजिन करो कि यहां कोई बैठा है, आप किस तरह से उससे डील कर रहे हैं, आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है. रिकॉर्ड करिए अपने कमरे के अंदर 4 मिनट 5 मिनट कुछ भी बोलने की एक्टिविटी को लेकर के. और उस समय ये नहीं कि सारा फोकस आप बहुत वो हो गए, कॉन्शियस होकर के कैमरे को देख रहे हो अपने मोबाइल के. योर फोकस शुड बी ऑन बाकी जो एस्पेक्ट है, बोलना या बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड मूवमेंट, आई मूवमेंट, इन सारी चीजों पे ध्यान देना है आपको. और ये इमेजिन कर लेना कि मेरे सामने कुछ लोग बैठे हैं. वो कुछ लोग 5 लोग भी हो सकते हैं, 50 भी, 5,000 भी, उससे तो फर्क पड़ता ही नहीं है ना जब ये आदत पड़ जाती है. अब 5 लोग बैठे हैं, मान लीजिए वो हाफ सर्कल के मोड में बैठे हुए हैं, तो आपको पता है कि आपको इधर भी देखना है, बीच में भी देखना है, इधर भी देखना है. यही काम तो आपको करना है वहां पे भी. अब सामने बैठे हैं तो गर्दन थोड़ी सी नीचे होगी, और आप मान के चलो कि लोग वहां बैठे हैं, इस तरह से भी आप देख सकते हैं. तो ये इसी को रिहर्सल कहते हैं. इतनी बार रिहर्स करना है, इतनी बार रिहर्स करना है कि कोई हाथ ना पकड़ पाए आपका. और फिर आपके अंदर एक सी चेंज आ जाता है. लोग आपके जो आसपास हैं वही नहीं पहचानेंगे, यार तुम तो बिल्कुल बदल गए. तो बदलना पड़ता है, लगातार बदलना पड़ता है. और भाई स्किल्स के बाद ही परफॉर्मेंस आती है. तो मैं यहां पे आपको, आप सोच रहे सर डायरेक्शन दे देंगे और हम परफॉर्म करने लग जाएंगे तुरंत, तो ये नहीं होने वाला. जो इन तीनों पड़ावों को पार करने वाला है, जो मैं कह रहा हूं,
क्या कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, और कैसे कह रहा हूं। ये तीनों बातें ध्यान में रखनी है। मैं वैसे क्यों से पहले शुरुआत करता हूं, क्यों करना है, क्या करना है और कैसे करना है। ये तीनों पॉइंट मेरे साथ हैं, रेस्ट ऑल द पॉइंट्स आर विद यू, दीज 3 पॉइंट्स। एंड इफ यू आर ऑन दिस ट्रैक यू विल डेफिनेटली परफॉर्म। इस बात को ध्यान में रखिए। और कोई सवाल? वोकैबलरी याद नहीं रहती है सपना। अगेन देखो, अगर ईमानदारी से ना आप 2 महीने अखबार पढ़ लेते तो वोकैब काफी हद तक बेहतर हो जाती। ठीक है, बाकी अगर मान लो नहीं समझ आता है डायनेमिक्स, तो वोकैब का वीओडी आता ही है, ले लो, उसमें ले लो आप। दो दोस्त जितने में जा करके कहीं अच्छी कॉफी स्टारबक्स में पियोगे, हैं आपको तो आप तो यहाँ पे खुद भी कह रहे हो आपको एयर होस्टेस बनना है, तो 2 कॉफी स्टारबक्स में जितने की आती ना, उससे कम का बैच आता 70 घंटे के वो कैब का, इतने कम प्राइस पॉइंट में। इसीलिए कि जैसे भी चाहिए आपको, आपको मदद हो जाए वहां पे। तो सारा डायनेमिक सिखाया गया, कैसे वर्ड्स को कनेक्ट करें आप, रूट वर्ड, ग्रुप्स मेथोडोलॉजी, बहुत सारी और चीजें, हर तरह के क्वेश्चंस, समझ, सेंटेंसेस की समझ की, जो फिलर्स के क्वेश्चन है उनमें कैसे समझो आप, कॉनोटेशन क्या है, कॉलोकेशन क्या है। क्योंकि अगर वोकैब की को रट करके उसकी हिंदी मीनिंग, इफ यू आर यूजिंग दैट काइंड ऑफ थिंग्स इन योर स्पीकिंग, वो आपके को मतलब दैट पुट्स यू इन पुअर लाइट एक्चुअली, दैट मेक्स इट एब्सोल्युटली क्लियर दैट यू आर ट्राइंग टू इम्प्रेस द अदर पार्टी, राइट। कि वोकैब मैं कुछ अच्छे से याद करके जाऊंगी या जाऊंगा, तो वो बहुत फ्लूइड मैनर में आना चाहिए, और उसके लिए एक्सपोजर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। And also, sir, after making a habit of listening English news, I somewhere also able to understand the business talks and business news as well. Yes, Asha, that's the flow जो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये आपका प्रोसेस, ये वही है। आपको फिर अपने आप इंटरेस्ट जगना शुरू हो जाता है, आपको मन करेगा कि नहीं आप सीरीन बान को सुने इंडिया बिजनेस आवर में। उसमें आई थिंक CNBC TV 18 का एक इंटरनेशनल वाला भी आता है सेगमेंट, उसी के ऊपर ही जस्ट है। इकोनॉमिक टाइम्स नाउ है। बीइंग अ लेडी, जो हमारी गर्ल्स हैं, लेडीज हैं, आपको तो और एस्पायर करना चाहिए यार, क्या खतरनाक बोलती हैं, मुझे भी बोलना है इस तरीके से। आप देखें ना बिजनेस चैनल्स पर जो न्यूज एंकर्स हैं, तो आपको खुद वो आपको मोटिवेट करना चाहिए। वो लीपा पोती वाला जो चल रहा है, वो लड़कियां मेकअप करके गाने गा रही हैं और कमर हिला रही हैं, वो मोटिवेशन नहीं है, वो एम्पावरमेंट नहीं है। ये है एम्पावरमेंट आपका रियल सेंस में, जो आपको UN में दिखाई दिया एक IFS ऑफिसर के जरिए, वो एम्पावरमेंट है। दैट्स द रियल एम्पावरमेंट। तो कम्युनिकेशन, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि बैच सिर्फ स्पोकन का नहीं था, बहुत सारे कम्युनिकेशन स्किल्स के गुर आपको यहाँ पे सिखाए गए। मैंने अलग नाम दे देता तो शायद बच्चे ही नहीं आते, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत, कई बार इनका एक्सपोजर बहुत नीचे है। तो मैं अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स करके बैच अनाउंस करता ना, तो बच्चे ही नहीं आते। तो कहा नहीं सर, बच्चों को स्पोकन स्पोकन पता है, वही लेके आओ, फिर आपको जैसे गाइड करना है कर लेना। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन इफेक्टिव कैसे हो, उसके बारे में हम थोड़ा बात, हमने नीचे से शुरू की और वहां तक ले गए हैं बात को। हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बने। आप किसी ग्रुप में हो, किसी कमरे में दाखिल हो, किसी इंटरव्यू में हैं, किसी हॉल में हैं, जब आप बोलना शुरू करें तो एक पिन ड्रॉप साइलेंस हो, तब आपको सुनने के लिए, मतलब वो ध्यान हटा ही ना पाए। आपके बोलने में इतनी कला होनी चाहिए, और ये कला एक रात में, 10 दिन में, 15 दिन में नहीं आती, इस पर काम करना पड़ता है। ऑल इंडिया रेडियो का इनपुट जो मैंने बोला है वो बहुत कारगर है। सुबह शाम की, या जो भी इंग्लिश, उसमें आई थिंक ऐप में लैंग्वेज चूज करने का भी ऑप्शन है आपके पास, तो आप इंग्लिश चूज कर लेंगे तो जो भी प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो के इंग्लिश में आते हैं, ट्राई टू लिसन टू दैट। एंड बिकॉज रेडियो का फायदा ये है ना, कि सिर्फ कानों को इंगेज रखना है और आपका ब्रेन इंगेज रहेगा। योर आईज आर नॉट इंगेज एट दैट मोमेंट। इवन इफ योर आईज आर क्लोज्ड, यू आर only focusing on the speaking nuances, the vocabulary, the pronunciation, diction, projection of voice, vocal intonation. You are focusing on all these technical aspects. तो वो चीज आपके दिमाग में, ब्रेन में, दोनों कानों से घुस रही है और वो गूंज रही है, तो आपको बहुत सारे आपके प्रोनाउंसिएशन खुद पकड़ में आने लग जाएंगे कि मैं क्या बोलता हूं, इस शब्द का मेरा उच्चारण कैसा है, एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन। तो दैट इज प्रोनाउंसिएशन, प्रोनन नहीं, प्रोनन भी नहीं, प्रोनाउन भी नहीं है, प्रोनन भी नहीं है, दैट इज प्रोनाउंसिएशन एंड प्रोनाउंस। तो जो कल का सेशन होगा, मैं उसमें आपके कॉमनली मिस प्रोनाउंस्ड वर्ड ही डिस्कस करूंगा थोड़े, ठीक है, अगला जो सेशन है।
चलो आ जाओ, ज्ञान बहुत हो गया। हाउ टू एक्सेप्ट अपॉलॉजीज ये हमने डिस्कस कर लिया था, आई होप सो। यस। हाउ टू आस्क समवन टू रिपीट समथिंग, एक्सक्यूज मी, ये भी तो कर लिया था। यस, हंग्री से शुरू करना है। हाँ, ये भी बहुत यूज होता है आजकल। Wish to say I am hungry. So I am hungry as a wolf. I am hungry as a bear. Famishing, flying light, got the munchies, hankering. My tummy is talking to me. I am freaking hungry, eager, greedy, keen. Ravenous is a good word. Filler में हमने यूज किया था ravenous. बहुत ज्यादा भूख लगी हो तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करते हैं। ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में जानना चाहते हैं इसके? यू आर आस्किंग अबाउट दैट। चलो बात कर लेंगे उसके बारे में, मुझे लगा वो ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा इसलिए मैंने फिर छोड़ दिया था। स्टार्व, फैमिस्ड, हॉगिस, हॉलो, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ कैबी हॉर्स। तो इसमें कुछ बड़े अजीब से भी हैं। और देखो, इन तरह के एक्सप्रेशंस के अंदर बहुत सारे कल्चरल इन्फ्लुएंस भी आते हैं। तो इन ऑर्डर टू बिकम कूल यू शुड डेफिनेटली नॉट यूज अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रेज that could be offensive to couple of people. You can simply say I'm famished, or I'm feeling ravenous, or I'm starving. That you can use simply. But मैं घोड़ा खा जाऊं, ये सब मतलब ठीक है एक्सप्रेशन, बट यूज नहीं करना चाहिए आपको। ऑफेंसिव टर्म नहीं यूज करना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। आई डोंट नो सत्यप्रकाश अबाउट एनी दिस काइंड ऑफ ऐप। अगर आप में से किसी को पता हो कि न्यूज़पेपर रीड करते समय ग्रामेटिकल प्रोफाइल आपको बता दें तो बताइएगा जरूर, किसी को पता हो तो। विश टू से गुड मॉर्निंग सनशाइन, मॉर्निंग माय एमिगो, एमिगा। अब ये हम वोकैबुलरी में करते हैं। रूट वर्ड इज एम, एंड एम मीन्स व्हाट? फ्रेंड, फ्रेंडशिप, और लव को शो करता है। तो ये वर्ड यूज किया था किसने? ये यूज किया था जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, थ्री एमिगोज। सो एमिगो इज अ नॉर्थ इंडियन, सॉरी नॉर्थ इंडियन कह रहा हूँ, नॉर्थ अमेरिकन स्लैंग फॉर फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स के लिए इस्तेमाल होता है। एमिएबल, एमिकेबल, एमेच्योर, राइट, ये सारे के सारे शब्द वहीं से आते हैं, इसी रूट वर्ड से आते हैं। My tummy is talking to me, that can also be used, that's also cool. बोलते समय ब्रीदिंग पर कंट्रोल नहीं हो पाता, मैं बता दूंगा। ब्रीदिंग पे कंट्रोल ना होना आपकी कई बार बेचैनी दिखाता है, आपकी सांस ऊपर नीचे हो रही है, समटाइम्स आप क्लास्ट्रोफोबिक फील कर रहे होते हैं, या आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो दिक्कत होती है। लेकिन कई बार इसमें कारण बाकी इसके अलावा होते हैं, मतलब हेल्थ के रीजंस नहीं होते, बल्कि आप जो हैं वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, आप एक तरह से हिले हुए हैं थोड़ा सा, या नर्वस हैं आप, तो उसकी वजह से फिर आवाज में कंपन होती है या पूरी ब्रीदिंग आप नहीं कर पाते। ओला हेमिगो, सबको सलाम, रघुपति राघव राजा राम, कृष 3। क्या बात है अनु, वेरी गुड। तो वही है मॉर्निंग। और आप देखते हो अमेरिकन टच के अंदर ना कम आता है, आखिरी लेटर कई बार वो मिस करते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मॉर्निंग, गुड लुकिंग, राइज एंड शाइन, गुड मॉर्निंग, वेकी, गुड डे टू यू, गुड मॉर्निंग, स्लीपिंग ब्यूटी, दिस दैट। बट फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का फर्क है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। इनमें बहुत सारे एक्सप्रेशंस इनफॉर्मल भी हैं। अदरवाइज अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेसिक स्टैंडर्ड है। या मान लो आप ऑडियंस है वहां पे, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच वन ऑफ यू सिटिंग आउट हियर। थोड़ा बहुत फ्रेजेस आगे पीछे जोड़ सकते हैं आप। अब सपोज आप एक ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं, देर आर 50-100 पीपल सिटिंग आउट देयर, तो आप ये कह सकते हैं कि अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच वन ऑफ यू सिटिंग आउट हियर, a very warm welcome to each one of you in this sunny morning, a very warm welcome to each one of you in this sunny morning, in this foggy morning, या कुछ भी इस तरह का जैसा भी है। तो इन रेनी मॉर्निंग, जो थोड़ा सा मतलब ना उस समय के सिचुएशन के साथ थोड़ा मैच करता हुआ दिखाई दे। ठीक है। My mind is like a monkey mind. How to deal with that? Vidyut, you are talking about a different stuff altogether. And we had a discussion on those areas as well in personality development section. तो उस बेचैनी को शांत करना है, कारण बताइए ना। मंकी माइंड क्यों है? माइंड के लिए तो माइंड पे पूरा मैं 3 घंटे का सेशन करता था।
HIDP के अंदर सिर्फ माइंड के ऊपर 3-4 घंटे का सेशन हो रहा है, रोल प्लेस कर रहे हैं, और एक सिंपल सा टॉपिक दिया जाता है कई बार GD के लिए भी कि यू आर द स्लेव आर मास्टर ऑफ योर माइंड। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर द स्लेव्स ऑफ देयर माइंड एक्चुअली। और ये बहुत पुराना कथन है, आपने भी सुना पढ़ा होगा कि दुनिया में सबसे तेज स्पीड किसकी है? वो है मन की, वो है मन की। तो ये मंकी माइंड सिर्फ आपकी समस्या नहीं है विद्युत, ये आम जनमानस की समस्या है कि हम अपने मन को कंट्रोल में कैसे रख पाएं, उसको नियंत्रित कैसे कर पाएं। तो उस पर मुझे अच्छा खासा लेक्चर देना पड़ेगा, तो मैं अभी उसके मूड में नहीं हूं। मैं इसको थोड़ा समाप्त करना चाह रहा हूं, मन से संबंधित। आइए, तो स्टैंडर्ड यूज करिए, इसमें बहुत सारे इनफॉर्मल भी हैं। मेकिंग अपॉलॉजीज, आई डू अपॉलोजाइज फॉर, आई मस्ट अपॉलोजाइज, प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी, आई अपॉलोजाइज फॉर गिव मी माई। ये तो कर लिया था ना शायद, एक्सेप्टिंग अपॉलॉजीज भी तो हो गया था। क्रिएटिव वेज टू से नो, not possible, by no means, I am slammed, not for me, thanks. Unfortunately, that's not something I can do at this time. I am really booked. Thanks for thinking of me. I really wish I could. That's not an option for me. This is not negotiable. I think not. If only it worked, but not for me, my friend, thanks. I have something else. I would like to, but I know I will regret it. सामने वाले ने ऑफर करा है तो उसकी थोड़ी इज्जत भी तो कर दो। क्या, मुझे पता है यार, बट मतलब मुझे इस बात का बड़ा अफसोस होगा कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। आई रियली अप्रिशिएट यू आस्किंग मी बट आई कांट डू। आई रियली अप्रिशिएट यू आस्किंग मी बट आई कांट कमिट टू दैट राइट नाउ। नो थैंक्स, थैंक्स फॉर थिंकिंग ऑफ मी बट आई कांट, अनफॉर्चुनेटली नॉट। I'm afraid I can't. Maybe another time. I'm sorry I'm busy. That's not that's not going to work for me. Maybe next time. I would love to but can't. My body says yes, but my heart says no. That does not work for me. I wish I could make it work. I'm honored that you asked me, but I can't do it. Sounds tempting, but I will have to pass. मुझे लग तो रहा है बड़ा आकर्षक, बट मुझे इस चीज को पास ऑन करना पड़ेगा। Goodbye, adios, bye now, bye bye, take it easy, aloha, cheerio, I am off, gotta go। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आपके लिए। सर कल का सेशन माइंड पे कर लीजिए। चलो, लवली टू मीट यू, पीस, सी या कैच यू लेटर, हैव अ गुड वन। आप क्या इस्तेमाल करते हैं जब गुड बाय करते हो? तो क्या इस्तेमाल करते हो आप? इसमें तो देखो बहुत सारा कुछ इनफॉर्मल है, अलग अलग कल्चर से भी आया हुआ है, बिकॉज हम एक फ्रेजेस की बात कर रहे थे। बट आप क्या करते हैं मतलब गुड बाय के लिए? अपना भी तो कुछ बताओ। एवरीथिंग इज ऑल राइट फ्रॉम माई एंड। नो, सी यू लेटर, सी यू लेटर, बाद में मिलता हूँ। बिल्कुल, बाद में मिलता हूँ। ओके, बाय फॉर नाउ। आई यूज बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, सायोनारा, वादा निभाऊंगी, पहला से हो, सायोनारा, कीप इन टच, बाय। गुड दिनेश।
बिल्कुल यही यही यूज करते हैं ना। वही मैं कह रहा हूँ, ये सब जानते हैं आप, बट ये क्योंकि मतलब वही है ना कि क्या कह सकते हैं उसको, दिस इज कस्टमरी। अब मैं मुझे आपको देना है तो देना है, अदरवाइज आपको ये सब पता है। विश टू से यस, व्हाई नॉट, ब्रिलियंट, ओहो, विलिंगली, श्योर आई कैन, कूल, नो प्रॉब्लम, यस, व्हाट इज इट, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, यू बेट गुड, अनडाउटेडली, undoubtedly, I shall, as you wish, as you wish. Permission granted. Yes, what can I do for you precisely? Happy birthday. Have a fabulous birthday. I hope you have a fantastic day. Have a great one. Wishing you many more. अब देखो वही अमेरिकन विशन जी खत्म हो जाता है, तो हम तो स्टैंडर्ड विशिंग यू मेनी मोर। ठीक है, बोलने में जी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब न लगाओ ना ऐसा करे कि नहीं लगा रहे हो बीच में। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ऑल द बेस्ट ऑन योर स्पेशल डे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स, आई विश यू अ वंडरफुल बर्थडे, हैव अ गुड वन, may your birthday be filled with laughter. I wish you all the best on your special day. I hope you have a fantastic day and a fantastic year to come. I wish you a wonderful day, wishing you a day that is as special as you are. Congratulations, congratulations, congratulations. Pronunciation वो ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। कंग्रेचुलेशंस ऑन अनदर ईयर ऑफ स्किलफुल डेथ इवेजन। है तुम एक साल और जी गए, मौत को मात दे दी तूने, चकमा दे दिया। होप यू हैव एन एंजॉयबल बर्थडे। अब ये मतलब यूज ना करो, ये अपने फ्रेंड्स में यूज कर सकते हो, मतलब जन्मदिन के दिन मौत का जिक्र हो रहा है, अदरवाइज देर इज नो रिक्वायरमेंट। होप यू हैव एन एंजॉयबल बर्थडे, यू डिजर्व इट। हाउ टू से आर वेज टू से हाउ आर यू, what's new, how's it going, how's everything, how's life, what's going on, what's happening, how do you do। अब बच्चा बेचारा जब नया नया अंग्रेजी सीख रहा होता है ना, तो उसको ये हाउ डू यू डू नहीं समझ में आता, वो कहता है कि हाउ डू यू डू, तुम कैसे करते हो। अब क्या कैसे करते हो, ये वाला हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, बट डू, हाउ डू यू डू, तो तुम कैसे करते हो, बट वो हाउ डू यू डू इज मोर ऑफ अ हालचाल। व्हाट आर यू अप टू, व्हाट आर यू अप टू दीज डेज गाय मैन, तुम तो पता नहीं किस दुनिया में हो आजकल, क्या ही कर रहे हो। हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू होल्डिंग अप, व्हाट्सअप ब्रो, हाँ व्हाट्सअप ब्रो वो वाला है थोड़ा। हाउ आर थिंग्स गोइंग एट योर एंड, हाउ आर यू बीन, हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन इज मोर अप्रोप्रिएट सब। हाउ हैव यू बीन। वेज टू से आई डोंट लाइक इट, अगेन ये बहुत ट्रिकी होता है, मतलब कोई किसी चीज को लेकर के आपकी राय ले रहा हो और आप उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई जगह पे आप सीधे तौर पे तो ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ, वो जैसे कपिल शर्मा अपने शो में करता है, अब उतनी तो बेहूदगी आप नहीं कर सकते आथू करके। वो क्या कैरेक्टर उसका आता था, एक चड्ढा साहब क्या नाम था, हाँ तुम्हारा चेहरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो कपिल को तो पूरी कॉमेडी बस फिजिकल एस्पेक्ट को लेकर के उधर आसपास घूमती रहती ज्यादातर, हैं अपने ही जो साथ काम करने वाले हैं उनके मोटापे, पतलेपन, होठों का मजाक बना बना करके। बट एनीवे यहाँ पे तो ये आई डोंट लाइक इट को कैसे बोलना, आई एम नॉट इन टू इट, आई कांट स्टैंड इट, आई हेट इट, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट। अब आई हेट इट, अब इसमें पता है जैसे वो थिसारस होते हैं ना वोकैबुलरी के लिए, कि देर इज वन वर्ड एंड देर आर 20 synonyms of that particular word, but there is a color coding as well, that out of these 20 words which one is the best one or the closest one। तो इस वर्ड का ये सिनोनिम ज्यादा क्लोज है, फिर ये दूर होता चला जा रहा है। वैसे ही इन एक्सप्रेशंस में भी है, इसमें आपको फिल्टर करना पड़ेगा थोड़ा, इसमें बहुत सारे कैजुअल हैं, बहुत सारे कल्चरल इन्फ्लुएंसेस लिए हुए हैं। तो आपको ये देखना है कि एक फॉर्मल सेटअप के अंदर जब आपको ऐसा मौका मिले, आप किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं किसी फॉर्मल सेटअप में, तो आप कैसे एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करेंगे। तो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट, आई हैव हैड एनफ, आई एम नॉट क्रेजी अबाउट इट, आई लोथ इट। अब लोथ जो वर्ड है वो अगेन हाई डिग्री का शब्द है। आई एम सिक ऑफ इट, आई डोंट अप्रिशिएट इट, आई एम नॉट रियली फॉन्ड ऑफ इट, आई विल पास, आई एम नॉट पैशनेट अबाउट इट, आई एम नॉट कीन ऑन इट, दैट्स नॉट फॉर मी, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट। ये शायद पढ़ लिया आपने पहले। दैट्स नॉट माई थिंग, दैट्स नॉट माई काइंड। अब देखो अभी आपने अगर एडवर्टीजमेंट की लाइंस देखी हो,
इट्स माई काइंड ऑफ थिंग कौन सी कंपनी के एड में सुनाई दे रहा है आजकल? इट्स माई काइंड ऑफ थिंग। बताओ। अब देखने वाली बात है आप कितने लोग ध्यान से सुनते हैं। देखिए, जब भी अगर आप थोड़ा समय भी जैसे रिलैक्स कर रहे हो, यूट्यूब पे भी जाते हो, वहां एडवर्टीजमेंट भी चलती है। टेलीविजन भी मान लो देख रहे हो, थोड़े समय आप न्यूज देख रहे हो, कुछ भी आए, जहां एडवर्टीजमेंट्स आ रही है ना, उनकी भी पंच लाइंस पे ध्यान दिया करो। उससे ह्यूमन साइकोलॉजी की समझ आएगी कि किस तरह से वो नैरेटिव बदलते हैं ब्रांड का। तो इट्स माई काइंड ऑफ थिंग, आई थिंक ये रिलायंस का जो आपका रिलायंस डिजिटल के एडवर्टीजमेंट में ये देखने को मिला कि इट्स माई काइंड ऑफ थिंग, इट्स माई काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये सब वहीं से आता है। इट्स नॉट माई काइंड ऑफ स्टफ यार, मैं मतलब इट्स नॉट माई काइंड ऑफ स्टफ मीन्स व्हाट, कि भाई मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, ये मेरे पसंद की चीज नहीं है, दैट्स नॉट माई थिंग। तो उन्होंने इट्स नॉट माई काइंड ऑफ थिंग या माई काइंड ऑफ टेक, ऐसा कुछ इन्होंने यूज किया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, रिलायंस डिजिटल के एडवर्टीजमेंट में इस्तेमाल हो रहा है, आई एम डिसइंटरेस्टेड इन दैट। और ये एक्सप्रेशन टेक्निकली आई एम अनइंटरेस्टेड, नॉट डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड इज अनबायस्ड होता है, जानते हैं आप। व्हाट्स पॉपिंग फॉर हाउ आर यू, हाँ यूज कर सकते, कैजुअल। Wish to say, oh my God, goodness gracious me, oh my, holy moly, for heaven's sake, oh Jesus, play me, for the love of God, gosh, ये भी बहुत सुनते हैं आप, gosh almighty, shitting hell। इवन ये जो देखो शिट वर्ड जो है ना, कितना चेंज होता, मुझे अभी भी याद है, मैं छोटा था और घर पे इंडिया टुडे आई थी, और उस समय कहो ना प्यार है वो मूवी आ रही थी, तो पीछे वो फिल्मों के बारे में भी लिखते थे, तो उसमें लिखा था कि आई थिंक ऋतिक रोशन का कैरेक्टर जो था कहो ना प्यार में, वो कहीं भी बोलता वो शिट, और उस पर आपत्ति जताई गई थी कि ये ऑफेंसिव वर्ड है। और फिर शायद राकेश रोशन ने कहा था नहीं, आजकल के यूथ इस तरह की भाषा का प्रयोग करते। तो मैं वही देख रहा हूँ, मतलब 20 years बैक इवन द वर्ड शिट वाज कंसिडर्ड प्रीटी मच ऑफेंसिव, बट nowadays it's a part of a common lexicon, like नाम हम बोलचाल में लोग बोलते हैं ओ शिट, ज्यादा ही बोलते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें आप। अगर आप इन सब शब्दों का चलन मतलब आपके प्रयोग में है, तो इनफॉर्मल सेटअप में करें, बट कोशिश ये करें कि रिफ्रेन करें कि ऐसे यूसेज ना पढ़ें, क्योंकि होता क्या है कि इन इन अ हीटेड environment, or particularly you are absolutely engrossed in any kind of discussion, you are getting engrossed mentally and all, so आपको ध्यान में ही नहीं रहेगा। ये ऑटोमेटेड होता है, क्योंकि जो बोलते आ रहे हैं वो आदत से मजबूर हैं, वो निकल के ही आएगा। तो कोशिश करें कि जबान हमारी शुद्ध हो, और स्लैंग शब्दों का इस्तेमाल इनफॉर्मल ओकेजन्स में भी ना करें, इस बात का जरूर ध्यान रखें आप, तब ऐसी गड़बड़ियां नहीं होंगी। दैट इज बेयर शेक, हेवेंस टू बेट्सी, होली क्रैप, ओ माई गुडनेस, ओ बॉय। बॉय ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉय के लिए लिटरल है वो, ओ माई गॉड। वेज टू से आई एम टायर्ड, आई एम वेरी, आई एम बुश्ड, आई एम बीट, आई एम डन, स्लीपी, स्पेंट, flat out tired, dead tired, running on fumes, dog tired, tired to the bone, knockered, I'm pooped, oh my god, I'm exhausted, I'm worn out, I am dead on my feet, I'm dragging, I'm running on empty. Another way to say, for example, particularly, note well, namely, to illustrate, for instance, additionally, like one example is as a case in point, as an example, such as, especially, in a similar case also, in addition to, by way of illustration, likewise, note well, as an example being, in particular, let's say, as seen in, this is illustrated, these include, ये सब आप यूज कर सकते हैं। हाँ जी। Now your queries time for the next 15 minutes if you have something to ask. हाँ, पहली चीज की आप, जैसे मेरे दिमाग में है अभी, बेसिक चीज़ों में कराने के लिए एक आपके कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड, वो एक बार डिस्कस कर लें, उनकी लिस्ट भी मैं डिस्कस कर लूंगा। कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स, और कौन सी चीज़ आपके हिसाब से और होनी चाहिए?
आपने कहा है कि सर वो एक जो हमारे ब्रीदिंग पैटर्न जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, आप चाहते हैं कि एक सेशन और मैं ले लूं। ठीक है जी, मैं ले लूंगा, कोई नहीं। जिसमें रेजोनेंस, ब्रीदिंग, ये सब का था आपका। ब्रीदिंग, रेजोनेंस, ये सब कैसे आवाज में लेके आ सकते हैं आप। मतलब ये जो ओकल एक्सरसाइजेज हैं, क्योंकि इसमें बहुत तरह की, कई बार जो स्पीच के कोचेज होते हैं ना, मुंह में कंकड़ रख करके बुलवाते हैं। एक छोटा सा कंकड़ रखवा दिया और फिर बोलने की प्रैक्टिस हो रही है। तो मैं वो सब तो करवा नहीं सकता, लेकिन आपकी आवाज की क्वालिटी और बेहतर कैसे हो सकती है, इन टेक्निकल चीजों के बारे में मैं एक आध सेशन ले लूंगा। आप इंटरेस्ट अगर वहां पे शो कर रहे हैं थोड़ा, तो क्योंकि ये थोड़ी सी, और जब आपको भूख बढ़ती है, अब आप सेंटेंसेस बना लेते हैं, सोच पाते हैं, वोकैब आपकी ठीक ठाक है। और देखो, वोकैब ठीक ठाक हो जाएगी अगर आपने एक 1.5 महीने 2 महीने भी एक्टिवली न्यूज सुन लिया या अखबार पढ़ लिया, या आदत डाल रखी है आपने कि 50 मिनट 1 घंटे मुझे एक्टिव रीडिंग करके ही सोना है। तो ये सारी समस्याएं जो सेंटेंस स्ट्रक्चर की है, वोकैब की है, ये दूर हो जाएगी। एंड ऑल इंडिया रेडियो को सुनो, वहां से स्पीकिंग की जो स्पीकिंग ब्लेमिसेस हैं आपकी, वो सब सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद फिर अगला आता है कि अब मुझे अपनी आवाज को और कैसे बेहतर करना है। जब कोई, कुछ लोग होते हैं जब वो बोलना शुरू करते हैं तो बिल्कुल सब बस सुनना चाहते हैं, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। जैसे मुझे ये कॉम्प्लीमेंट कई बार मिला है कि जब मैं अपने फ्लो में आता हूँ तो लोग कहते हैं सर फिर मुझे लगता है कि चलते रहना चाहिए, आप जब शुरू करते हो तो आप बोलते रहो, आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है। ये 10 साल पहले ही मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिला था। तो ये चीज ऐसी है कि आपको इस पर काम करना पड़ता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप लोगों की बात नहीं करेंगे, लोगों की बात का मतलब कि जिन चीजों का लोगों से इत्तेफाक नहीं है, अगर वो बातें करोगे तो फिर लोग क्यों ही सुनेंगे। तो मैं इवन कॉर्पोरेट सेशंस में भी टेक्निकल बातें नहीं करता, मैं आई टॉक अबाउट पीपल। मेरा सारा का सारा पीपल सेंट्रिक होता है, ऑडियंस सेंट्रिक होता है। वो जिस लेवल पे है, स्टूडेंट्स हैं उनके चैलेंजेस हैं तो उन सेशन में उनकी चर्चा होगी। कॉर्पोरेट्स हैं, किसी खास सेक्टर से हैं, उनके सेक्टर के क्या चैलेंजेस हैं, या लाइफ चैलेंजेस, क्योंकि लाइफ स्किल्स कोचिंग ज्यादा होती है। ये पूरा जो आपका सेगमेंट है, देर आर 17 टॉपिक्स जहाँ पे, जिनके लिए मैंने कोर्सेज डिजाइन किए हुए हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल पे आपको वो 17 टॉपिक मेरे प्रोफाइल डिटेल में मिल जाएंगे जो कॉर्पोरेट्स के लिए करता हूँ। तो वो सब आपकी लाइफ स्किल्स के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो उनमें वो मेन एरियाज हैं यार। जब इंसान ठीक ठाक है ना, तो वो जो भी कर रहा है वो उसमें ठीक ठाक ही होगा। जब आप ही हिले हुए हो, तो आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप परफॉर्मर हो, आर्टिस्ट हो, मैनेजर हो, टॉप मैनेजमेंट में हो, मिड लेवल मैनेजमेंट में हो, एंट्री लेवल पे हो, कहीं पे भी हो, जिंदगी हिली हुई रहेगी, बिकॉज आप हिले हुए हो। तो मेरा काम उस आप को सही करना है, उस इंडिविजुअल को वो आइडेंटिफाई करे। इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज बोलते हैं TNA, ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस करनी पड़ती है पहले, कि क्या ऑडियंस है, किस लेवल पे है। उनको उनको कुछ पेपर्स देने होते हैं जिससे उनके जवाब से पता लगता है वो किस लेवल पे हैं। अब जैसे आपने वो जो लिखवाया मैंने आपसे, उसमें पता लगा ना मुझे, मेरा ये बैच कितना वैरीड है। इनमें मास्टर्स किए हुए लोग, वर्किंग लोग, वर्क एक्सपीरियंस्ड वाले लोग भी हैं, और इसमें वो भी बच्चा है 12वीं पास जो स्ट्रगल कर रहा है सेंटेंसेस लिखने के लिए भी। तो विदाउट, मैं जब तक आपसे कोई पत्राचार नहीं होगा, मैं आपको जानूंगा कैसे कि आप कौन है, और बिना आपको जाने मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूं। तो मैं उस विचार में बिल्कुल यकीन नहीं रखता, भले ही उसमें मेहनत करनी पड़े, तब जाकर के आप ईमानदारी से लोगों को हेल्प कर पाते हैं। तो ये मेरी फिलॉसफी भी है, बिकॉज इफ यू आर हेल्पिंग आउट द पीपल, दैट इज द डेमोग्राफिक डिविडेंड। जो भी वो कर रहे हैं, किसी भी सेक्टर में है, आप उस सेक्टर को हेल्प कर रहे हैं। बिकॉज मेरी जब प्रोडक्टिविटी खराब है, मैं अपना टाइम खराब करता हूँ, मैं इंटेंगल्ड रहता हूँ फालतू की चीजों में, हो जाता हूँ, किसी भी दुख दर्द में रहता हूँ, एहसास भी टाइम खराब कर रहा हूँ, फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर ये सारी समस्याएं हैं तो भाई मेरा टाइम हर मिनट जा रहा है। मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें मैं टाइम लगा सकता था, जो इन सब बर्बाद करते हैं। तो फिर आपका ध्यान उधर जाना शुरू करता है कि हाँ, इधर हमें ध्यान देना है। ठीक है। कल अगर मौका मिला तो कल एक और ब्लॉग है वो आपके साथ पढ़ा दूंगा, जो आइडेंटिफिकेशन पे है, आइडेंटिटी के ऊपर है। और वो काफी काम का होगा, क्योंकि आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज योर आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज योर आइडेंटिटी, किस रेल्म में आप अपने आप को देखते हो। ठीक है, मैं देख लूंगा। नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए सर इंटरव्यू की। ऑफलाइन में करवाते तो सर आप कंकड़, अरे नहीं नहीं, वो नहीं कराता था। वो कौन करेगा,
वो बहुत रिफाइंड लेवल पे है। मतलब अब आप खुद ही देखो, आप अपने बोलने के चक्कर में ये देख सकते हो कि जब आप तेज बोलते हो ना, तो आपकी जीभ फंसनी, जैसे मेरी भी जीभ कई बार फंस जाती है, तो दिन भर बोलना होता है, जीभ भी थक जाती होगी ना, तो कई बार आवाज आपकी जिसको वो गड़बड़ हो जाती है। कुछ लोगों की आवाज वैसे ही साफ नहीं होती है, वो हों हों करके बोलते हैं, उनकी आवाज अपने मुंह में ही गूंज रही होती है, या थोड़े आलसी होते हैं, जबान जितनी खोलनी है, या प्रोनाउंसिएशन के लिए जो पूरा मूवमेंट, जो हमने पूरा एस्पेक्ट देखा था अपना बोलने का, पूरा मशीनरी, कहाँ से किसका उच्चारण होता है, तो वो सब हमने वॉवल, कॉन्सोनेंट, साउंड, ये सब डिस्कस किया हुआ है इस बैच में। तो वही है, जहां से उच्चारण होना चाहिए वहां से करना पड़ेगा। अगर आप थोड़े से भी आलसी होते हैं तो आपका उच्चारण साफ नहीं होगा। तो ये पूरी वो छोटा सा कंकड़ वही आपकी जीभ में टकराएगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं कि जितना टच करना है, ऊपर जानी है टच, नीचे जानी है, टर्न होनी है आपकी टंग जो है, किस तरीके से बोलनी है आपको, उसके बाद भी शुद्ध बोलना है। तो ये सब एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं इस चक्कर में कि आपकी आवाज जो है वो साफ हो। स्पीड के चक्कर में कभी भी कि मुझे फ्लुएंट स्पीकिंग करनी, उस चक्कर में अपनी बात को खराब कभी भी मत करो, ये बहुत जरूरी है। Sir, I have seen your vocab special class of 415 hours on YouTube, and that video was amazing on how you were teaching. And after that video, I changed my vocab approach. I daily make confusing words pairs, and even, sir, I automatically find out the confusing word which I use daily. Yes. तो मैं वही चीज, आप मेरा कोई भी कोर्स लेंगे ना, मैं दिमाग खोलने में यकीन रखता हूँ। मुझे कभी भी ये नहीं कहना है कि मैं सर का फैन हूँ, मैं सर का विद्यार्थी हूँ, सर के बिना मेरा काम नहीं चल पाएगा, सर ही मेरा बेड़ा पार कराएंगे, मैं ये कभी नहीं बोलता हूँ। मेरा काम है आपके दिमाग के दरवाजे खोलना, जो एक कोच का सही काम होता है। और वो वाली बात कि सा विद्या या विमुक्त है, मैं ये बार बार कहता भी हूँ, विद्या वही है जो आपको फ्री करे। तो मैं फैसिलिटेटर हूँ, बस माध्यम मात्र हूँ कि वो विद्या आप तक पहुंचे और आप फ्री हों, आजाद हों। फ्रीडम और जॉय की बात की थी हमने, ये दो हमारे पंख हैं, कि कोई बांध के ना रखे कि नहीं नहीं ये किताब बेड़ा पार लगाएगी, ये कोर्स बेड़ा पार लगाएगा। बेड़ा आपका आप ही पार लगाओगे। ये सब वाहियात चीजें दिमाग से हमें निकाल देनी है। बेड़ा आपका आप ही पार लगाएंगे, लेकिन ईमानदार रहिए अपने साथ, वो बहुत जरूरी है। धोखे में अपने आप को मत रखिए। जो भी दिक्कतें हैं उनको पहचानिए, दिक्कतों के साथ वो कहते हैं ना, सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पे काम करिए। उन चीज़ों को लंबा मत खींचिए। प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम होती है हमारी, टालते रहते हैं, हो जाएगा हो जाएगा। वो सब अगर आप छोड़ देंगे तो कोई नहीं रोक सकता है आपको सफल होने से। और आप अच्छे तरीके से बात करेंगे, बोलेंगे, या जो भी करना चाहते हैं फॉर दैट मैटर वो कर पाएंगे। हाँ जी, 9 अक्टूबर को फॉरेन एक्सप्रेशन सैटरडे को होगा। आज शायद यूट्यूब पे नहीं है कुछ। Ayush is saying, sir, I'm experiencing breathlessness while speaking. Could you please tell me about some solution? I will talk about Ayush. I will talk about this. मैं कल कुछ मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड डिस्कस कर लूँ, फिर नेक्स्ट वीक हम इसके ऊपर बात कर लेंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक मैं कोशिश करूंगा कि कुछ जो सेशंस हैं हमारे इंटरव्यू वाले, वो कुछ आयोजित कर पाऊँ मैं आपके लिए, एंड दैट विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल। तो जो भी वॉलंटियर करना चाहता है इसमें, वो मैसेज कर सकता है उस पर्टिकुलर नंबर पे जो शेयर्ड है। तो फिर हम आपको टीम के साथ बोल करके मेरे साथ कनेक्ट करा देंगे, और वो सेशन जो है लाइव करना होगा, लाइव कर लेंगे हम, रिकॉर्ड करके डालना होगा, रिकॉर्ड करके डाल लेंगे, क्योंकि मुझे वो एक सैंपल के तौर पे भी देना है। तो whosoever of you is interested in interview with me, राइट, आप एक बार मैसेज कर दीजिए, क्योंकि मैं कल आपको मैंने बोला था मैं एक पेपर भी दूंगा, जो पॉइंट्स हैं वो लिख करके भेजें। जो जिन लोगों ने नहीं भेजा है वो भी, उससे मुझे आपको जानने समझने में बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि यार देखो, जनरेशन बहुत तेजी से बदलती है। अब इसको अभी जब ये आर्यन खान का पता लग रहा है ना, तो चीज़ें बहुत शॉकिंगली निकल के आ रही हैं, अलग अलग तरह के रिपोर्ट्स। कल एक एफएम न्यूज़ चैनल पे मैं ऐसे ही शाम को ड्राइव कर रहा था, तो एफएम पे आ रहा है कि स्कूल के बच्चे जो हैं, वो स्कूल के बच्चे दिल्ली के अंदर नशे कर रहे हैं, और जो पकड़ा गया है, जिनके नाम आए हैं, वो सब एक्सटेसी पिल्स और एमडीएमए और कोकेन, ये सब कुछ अवेलेबल है। स्कूल के बच्चे नशा कर रहे हैं। तो खैर, मैंने भी कैट के लिए जब मैं पढ़ा रहा होता था, तो वो भी मैं देखता था, डीयू का क्राउड होता था, और लड़के लड़कियां सब निकल के फूंक रहे हैं। जो दो क्लास के बीच का गैप होता था, आधे घंटे का, कई बार लंच ब्रेक होता था,
तो ये कॉलेज का है, कॉलेज से अब स्कूल तक पहुंच चुका है वो, स्कूल में, और ये अवेलेबिलिटी है। तो बहुत चीजें खतरनाक स्टेज में हैं, और ये खास तौर से उनमें ज्यादा हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड अपर क्लास मानते हैं। ये उनकी समस्या है। तो बहुत तरह के डायनेमिक्स हैं, और मैं खुद मतलब कई बार हैरान होता हूं कि क्या ही चल रहा है, या क्या प्रोजेक्शन चल रहा है, कौन सी ऐसी कमी और अधूरापन और अकेलापन और खोखलापन है जिसकी वजह से इतनी कम उम्र में, जबकि जब जो सीखने की उम्र है, जो जानने की उम्र है, जो एक्सप्लोर करने की उम्र है, वो डम्ब और डल कैसे हो जा रही है। आज का यूथ आप देखें तो मतलब बहुत सारा यूथ आपको डल भी दिखाई देता है। वो 17-18 साल में ही उसका दिया बुझ चुका है टाइप, इस तरह का होता है वो। तो जो जोश होना चाहिए वो जोश ही गायब है। जो जिसके लिए हमने 25 साल की व्यवस्था की थी कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो सीखने, जानने, बेहतर करने, उसके लिए उतने टाइम में तो वो खत्म हो जा रहा है। वो शुरू हो जा रहा है 12-13 साल से, हार्मोन्स जैसे ही प्रभावित करना शुरू कर रहे हैं वो। 6ठी-7वीं क्लास से एक्सप्लोरेशन शुरू है। 10वीं तक, 12वीं आज तक आते हैं तो बॉन्ड बन चुके हैं। तो मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि इन चीजों पे जरा ध्यान रखें। और विदाउट रिफ्लेक्शन के कई बार मैं कुछ हो सकता है, आई कुड हैव अ प्री कंसीव नोशन अबाउट पीपल, बट दैट वाज रियली अ शॉकिंग थिंग फॉर मी कि भाई स्कूल लेवल पे भी इस तरह का पूरा नेटवर्क है। वो बच्चे नशे कर रहे हैं जो खास तौर से पॉश स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो जब आप लिखते हैं या कुछ बोलते हैं तो आपका परिचय होता है। तो मैं इंटरव्यू से पहले, या जो लोग इंटरव्यू देने में इंटरेस्टेड हों, बात करने में इंटरेस्टेड हों, ऐसा नहीं कि सीधा वहीं पे आएगा, तो मुझसे पहले भी फोन पे बात कर सकते हो, कि हम थोड़ा सा एक बात कर लें आपकी बातें, क्योंकि उस चीज़ को फिर हम रिकॉर्ड भी करेंगे। तो मैं थोड़ा सा गाइड आपको कर दूंगा, या कुछ जो भी है, मतलब वो मैं देख लूंगा कैसे करना है। लेकिन आप जरूर एक बार मैसेज कर दीजिएगा, और कल मैं वो क्वेश्चनेयर दे दूंगा आपको कि जो जो चीज़ें आपको जवाब में लिख के देनी है, लिखो थोड़ा। वो लिखने से भी ना बहुत कुछ आपको अपने बारे में सोचने का मौका मिलेगा, और सोचने की वजह से फिर आपको करेक्शन के भी चांसेस होते हैं, जिसको हम कहते हैं कोर्स करेक्शन करना, सेल्फ करेक्शन करना, उसके भी चांसेस रहेंगे। ठीक है। अनु सर, मेरा बस कैट का बैच बचा हुआ है आपका। मैंने बैंकिंग, इंग्लिश स्पेशल, स्पोकन वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन सब ले लिया फ्रॉम February टू नाउ। आई ऑब्जर्व्ड अपग्रेडेशन इन माई सेल्फ। अनु, आई हैव बिग होप्स फ्रॉम यू। यू हैव बीन अ गुड स्टूडेंट। आई थिंक बैंकिंग से ही आपने शुरू किया था, और मैं तब से देख रहा हूँ परफॉर्मेंस, अनु की परफॉर्मेंस हर बैच के अंदर अच्छी रहती है। और आई थिंक ये कन्या अभी 12वीं में ही है। अब ग्रेजुएशन शुरू हो गई अनु की, क्या है, अभी ग्रेजुएशन चल रही है ना शायद, 12वीं हो चुकी है। तो अच्छी बात है। उम्मीद है कि आप अच्छा एग्जाम पिछले अगले 2 साल में मुझे कुछ अच्छा रिपोर्ट देंगे जरूर। बिल्कुल सपना, एनी वन कैन टॉक टू मी, देर इज नो इशू एट ऑल। आपकी जो भी जेन्युइन समस्या है आप मुझसे बात कर सकते हैं, उसमें किसी को कोई मनाही नहीं है। लेकिन उसके उसके लिए जो थ्रू प्रॉपर चैनल है आप बात कर सकते हैं। नंबर आपको दिया जा चुका है इस ऐप, इस क्लास में भी कई बार दे चुका हूँ। नहीं है, फेसबुक पेज पे जाकर देख लो, इंग्लिश एक्सपो भी सत्येंद्र तिवारी, वहां आप लिखेंगे वो कनेक्ट कर देंगे, कोई इशू नहीं है। 12th 2020 में हो गई थी, ओके। विकास का एमटीएस का पेपर था, 24 सही हुए हैं 25 में। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है विकास, इंग्लिश में। चलिए, so that's all for today's session. Thank you very much. Let's catch up tomorrow, and then we will hopefully discuss about the commonly mispronounced words. And in the next week, I will talk about the technical aspect of speaking, particularly the breathing and resonance, that how can you improve on that particular part. But वही है, घर बनाने के बाद घर सजाने का काम होता है ये। तो खास तौर से ये उनके लिए काम का है जो बोलते हैं इंग्लिश। सेंटेंस में दिक्कत नहीं होती, स्ट्रक्चर बना पाते हो, सही वोकैब चुन पाते हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रख पाते हो, उनके लिए काम की ज़्यादा होंगी। जैसे ऊपर वाला वर्क वही है ना, स्ट्रक्चर खड़ा ही नहीं हुआ और आप इंटीरियर थोड़ी कराने चले जाते हो। तो स्ट्रक्चर जो जिस लेवल पे, उस लेवल पे समझ लीजिए। थोड़ी सी हाई लेवल की चीज़ें होंगी, जो टेक्निक्स बताई जाएंगी वो आपको मदद करेंगी, आपके फेफड़े की ताकत बढ़ेगी कि लंबे समय तक आप बोल सकें। उसके लिए भी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अगर जान ही नहीं है फेफड़े में तो आवाज़ कहाँ से निकलेगी। ये भी तो है ना, कहा था पेट से आवाज निकालनी पड़ती है। सिर्फ गले से आवाज नहीं आती। पेट का मतलब कोर, कोर में ताकत होनी चाहिए बोलने के लिए, ऑडियंस तब आपसे मुतासर होती है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल।